विनाशनाय नमोस्तु तस्मै विनाशानाय नमोस्तु तस्मै विनाशनाय। આભાર શણગાર તથા જીવનના આધાર એવા અંતરિક્ષ પાસના દાદાના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદના। आसमान में कितने तारे हैं परंतु चंद्र जैसा कोई नहीं। आसमान में कितने तारे हैं परंतु चंद्र जैसा कोई नहीं। और जग में कितने चेहरे हैं परंतु गुरु मैया आपके जैसा कोई नहीं। और जग में कितने चेहरे हैं परंतु गुरु मैया आपके जैसा कोई नहीं। भक्ति योगाचार्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय यशो विजय जी सुरेश्वर जी महाराज चरणों में कोटि कोटि वंदना। स्वाध्याय प्रेमी एवं गुरु भगवंतना चरणों में कोटिशः वंदना। प्रवचन प्रभावक श्रीमद विजय जी सुंदर सुरेश्वर जी महाराज चरणों में कोटि कोटि वंदना। संस्करण शिल्पी तथा बंधु बेलड़ी आचार्य भगवान श्री हंस कीर्ति सुरेश्वर जी महाराज तथा श्री भव्य कीर्ति सुरेश्वर जी महाराज चरणों में कोटि कोटि वंदना। Hello and very good evening to one and all present here. A very warm welcome to this beautiful, exciteful and wonderful auspicious day that brings so many special people like you. Namo Namah. Namo Namah. हम अंतरिक्ष में हैं अभी। आदिनाथ दादा की प्रतिष्ठा है। महावीर स्वामी भगवान के काल में हम विचर रहे हैं और ऐसे में नेमिनाथ दादा को हम कैसे भूले। तो तपोवनी छोटे छोटे भूल के लेके आ रहे हैं नेम रस की एक बहुत खूबसूरत प्रस्तुति। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। अचानक आ रहे लोग कैली वाई बॉडी की आदि बार बहुत छोटा होता है। अब फोकसिंग लाइट बंद है एकदम।
कि समंदर में तूफान आ जाए, बारिश ऐसी हो कि समंदर में तूफान आ जाए और तालियां ऐसी हो कि गोलियों में जान आ जाए। जो दिल के हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जो दिल के हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं, और जिन्हें ऐसा बनाया है वो आज हमारी महफिल में आए हैं, और जिन्हें ऐसा बनाया है वो आज हमारी महफिल में आए हैं। ગુરુમાં જેમને પોતાના યૌવન કાળમાં કેટલા યુવાનોને પ્રવચનો દ્વારા શિબિરોના માધ્યમથી રાષ્ટ્રપ્રેમ, સંસ્કૃતિ પ્રેમ, ધર્મ પ્રેમ માટે પ્રેરિત કર્યા, ત્યારે ગુરુમાના મનમાં વિચાર આવ્યો કે આજ રાષ્ટ્રપ્રેમ, સંસ્કૃતિ પ્રેમ અને ધર્મ પ્રેમના કાર્યો આપણા જીન શાસનનો નાનો બાળક કરે તો અરે મારી છે અને એ જ વિચારથી 40 વર્ષ પહેલા તેમને વેદના અને વ્યથાથી આ કળિયુગ ભર્યા આ વિશ્વમાં સપનું જોયું, અને તે છે આ તપોવન। અને આ રીતે ઈસવીસન 1984 માં નવસારી તથા 1994 માં અમદાવાદ તપોવનનું અવતરણ થયું। બટ વોટ ઇઝ તપોવન? તપોવન એટલે શું? ભક્તિ, મૈત્રી અને શુદ્ધિનું ત્રિવેણી સંગમ, ધેટ ઇઝ તપોવન। કામેમી, મિચ્છામી, વંદામી ત્રિપદીને આત્મસાત કરાવતી કર્મભૂમિ એટલે તપોવન। હેવન ઓફ ધ અર્થ ટુ મેક બ્રાઇટ બર્ડ, ધેટ ઇઝ તપોવન। પુણ્યનું પ્રોડક્શન કરાવતી ફેબ્યુલસ ફેક્ટરી એટલે તપોવન। રાગથી ત્યાગ તરફની વિરાગ ભૂમિ, ધેટ ઇઝ તપોવન। વીર, ધીર અને ગંભીર બનાવતું ઉપવન એટલે તપોવન। અશુદ્ધિથી શુદ્ધિ તરફનો એક પવિત્ર માર્ગ, ધેટ ઇઝ તપોવન। જ્યાં ચંદ્ર જેવી શીતળતા છે ને શેતર જેવી તેજસ્વીતા છે એટલે તપોવન। સત્ય અને સત્વની જુગલબંધી, ધેટ ઇઝ તપોવન। જ્યાં સ્વરક્ષાથી સર્વરક્ષા સુધીની યુદ્ધ ભૂમિ એટલે તપોવન। યસ, ધીસ ઇઝ તપોવન। થોડા સમય પહેલા તપોવનથી બે બાળકો ઇન્ટરનેશનલ લેવલે ટેકવાન્ડો રમીને આવ્યા, પોતાનું નામ, પોતાના માતા પિતાનું નામ અને ગુરુજનોનું નામ રોશન કર્યું। તેમાંથી એક બાળકે ગોલ્ડ મેડલ લીધું તથા બીજા બાળકે સિલ્વર લીધું। તપોવનમાં શું નથી? તપોવનમાં સંગીતની એક્ટિવિટીઝ છે, તો ફિઝિકલી ફિટ થવા માટે જિમ્નાસ્ટિક, ટેકવાન્ડો તથા અનેક પ્રવૃત્તિઓ છે। તપોવનમાં જે બાળક, તમારા ઘરમાં જે બાળક સવારે ઉઠતા હાથમાં ફોન લે છે અને એ જ બાળક તપોવનમાં હાથમાં નૌકાર ગણે છે। લાઈટ ઓછી પડે છે જે બાળક સવારે 9 વાગે ઉઠતો હોય તે જ બાળક સવારે 5:30 વાગે ઉઠે છે તપોવનમાં। જે બાળક સવારે 7 વાગ્યા ઉઠીને સ્કૂલ બેગ પહેરીને સ્કૂલે જાય છે અને એ જ બાળક સવારે 7 વાગે અષ્ટપ્રકારી પૂજા કરવા માટે હાથમાં બટવો લઈને જાય છે। રાત્રે સૂતી વખતે ફોનમાં ગેમ રમતા રમતા કે વાત કરતા કરતા સૂઈ જાય, અને ત્યારે તપોવનના બાળકો સરસ મજાની પૂજ્ય રત્નસુંદર મહારાજની ચોપડીઓ તથા ગુરુ મૈયાની ચોપડીઓ વાંચતા વાંચતા ઊંઘી જાય, અને એ જ વિચારોમાં સવારે ફરીથી એક ચુસ્તી અને ખુમારી ભરેલી સવાર એ લોકો કરે। જીવનમાં કોઈ પણ સંકટ આવે ને તો યાદ રાખજો, हर संकट का हल होगा, वह आज नहीं तो कल होगा। माना कि अंधेर बहुत और चारों ओर नाकामी है, माना कि अंधेर बहुत और चारों ओर नाकामी है, माना कि टूट गए और सफर अभी भी बाकी है, माना कि हिम्मत टूट गई और आंखों में निराशा छाई है, माना कि टूट गए और आंखों में निराशा छाई है, माना कि चंद्र पे ग्रहण है और रात अंधेरी छाई है। प्रभु वीर ने सच कहा था, प्रभु वीर ने सच कहा था कि कर्म आज नहीं तो कल होगा। अगर कर्म में सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। हर संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। सीना जितना तपता है वो उतनी ताकत बढ़ता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना और चमकता है, हीरे को जितनी धार लगे, हीरे को जितनी धार लगे वो उतना प्रखर निखरता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धन पर खूब खनकता है। अगर सूरज जैसा बनना है तो सूरज सम जलना होगा, अगर सूरज जैसा बनना है तो सूरज सम जलना होगा। नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम तो महावीर की संतान है, हम तो महावीर की संतान है। क्यों सोच रहे सरल होगा? कुछ वक्त और लगेगा परंतु संघर्ष जरूर सफल होगा। कुछ वक्त और लगेगा परंतु संघर्ष जरूर सफल होगा। हर संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। हर संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। संकट तो चीर शासन અને આપણા તીર્થો પર આવી ગયું,
શત્રુંજય પણ માઇનિંગ ચાલે આપણા સાધુ ભગવંતોને અપશબ્દો બોલાય એક જોઈને કેટલાક આચાર્ય ભગવંત અને શ્રાવકો પોતાનું સત્વ બતાવ્યું હવે આપણી વારી છે આપણે પણ મળીને સત્વ બતાવીશું जन्म जहाँ पर हमने पाया शुद्ध ज्ञान हमारा सबसे प्यारा प्रभु हमारे बड़े निराले गुरु हमारे शासन सितारे शासन की शोभा तीर्थ हमारे की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे तीर्थ रक्षा की ज्योत जलाने हम घर में चाहेंगे मर जाएंगे, नहीं झुकेंगे अरे मिट जाएंगे, नहीं झुकेंगे अरे कट जाएंगे, नहीं झुकेंगे प्राणों से भी प्यारा है शत्रुंजय हमारा है अरे प्राणों से भी प्यारा है गिरनार की तीर्थ हमारा है, अरे प्राणों से भी प्यारा है समेत शिखर हमारा है, अरे प्राणों से भी प्यारा है तारंगा तीर्थ हमारा है, अरे प्राणों से भी प्यारा है ये अंतरिक्ष तीर्थ हमारा है, अरे प्राणों से भी प्यारा है अंतरिक्ष तीर्थ हमारा है। तो ऐसे ही तीर्थमय शासनमय प्रभुमय तथा गुरुमय बनाने के लिए आ रहे हैं तपोनी वीर बच्चे तो प्रस्तुत है तीर्थ रक्षा की दिल धड़क दास्तान। नमो नमः नमो ज्ञानम। आप सभी रसिक परिषद का अभिवादन। जिन शासन की धरोहर ऐसे तीर्थों की रक्षा हेतु अपनी बौद्धिक कुशलता और वीर रस का परिचय देती हुई शौर्य गाथा का बयान आप सभी जिज्ञासु श्रावक श्राविकाओं के समक्ष तपोवन संस्कार पीठ गुरुकुल के वीर तपोवनी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक ऐसी कथा जिसने जिन शासन के जैन तीर्थों की रक्षा हेतु एक नई सोच दी है। इस सत्य घटना का निर्माण 12वीं शताब्दी के सोलंकी राजा कुमारपाल के समय में हुआ था। वंदे शासनम 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 वंदे शासनम। ओ वीरतारू शासन मुझने प्राण थकी पण प्यारू तारा शासन काजे जीवित वाली हिम्मत धारू
सुध अगियारस दिवसे शासन स्वाकृते तो भव करवा काजे न बड़ु तर तुम क्यों ते तो जन अमे जिन शासन माही गौरव नु धरू शासनम वन्दे शासनम् वन्दे शासनम् उत्तर गुजरात के प्राचीन अडावला और अर्वाचीन अरावली के पहाड़ी प्रदेश में स्थापित तारंगा तीर्थ इस घटना से इतिहास के पन्नों पर महत्व का स्थान अंकित कर चुका है। सन 1221 से 1241 के समय में कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्राचार्य जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से गुर्जर नरेश कुमार पाल महाराजा ने 1444 जिनालयों का निर्माण करवाया। तीर्थ स्थानों के महत्व को समझते हुए राजा ने 16,000 जिनालयों का जीर्णोद्धार भी करवाया। इन जिनालयों में से एक जिनालय तारंगा तीर्थ का भी निर्माण करवाया था, जिसमें जिन शासन के द्वितीय तीर्थंकर श्री अजीतनाथ स्वामी की प्रतिमा शोभायमान है।
प्राचीन ग्रंथ जैन प्रबंध कुमारपाल प्रबंध नामक ग्रंथ से प्राप्त संदर्भ के अनुसार वेणी वत्सराज नामक बौद्ध राजा ने तारा देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था। इसीलिए उस गांव का नाम तारापुर रखा गया था। तत्पश्चात तारा ग्राम और बाद में अपभ्रंश होते होते तारा गांव होकर तारंगा नाम प्रस्थापित हुआ होगा, ऐसा प्रतीत होता है। दधिस्थली नगरी में चालुक्य वंश के त्रिभुवनपाल और काश्मीरा देवी अपने 5 संतान के साथ निजानंद में भक्तिमय जीवन व्यतीत करते थे। उसके 3 पुत्र रत्न कुमारपाल, महिपाल और कीर्तिपाल तथा 2 पुत्री रत्न प्रेमल देवी और देवल देवी अपने माता पिता की छत्र छाया में आनंद और संप के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। सिद्धराज की मृत्यु के पश्चात कुमारपाल पाटन की राजगद्दी पर विराजमान हुए। वे पुत्रव्रत प्रजा का पालन करते थे, इसलिए उन्हें नगर जनों ने प्रजापति का उपनाम दे दिया था। ये कैसा राजा है जो जैन धर्म का अनुरागी है, फिर भी जीव हिंसा के प्रति शुष्क वर्तन कर रहा है। अरे सुनो, शायद राजा को राज्य में चल रहे कसाई खाने का अंदेशा ही न हो। ऐसे बिना जाने राजा के बारे में बोलना उचित नहीं है। अरे भाई रुको रुको, इन मासूम बकरे को जमीन पर गिरते पड़ते खींचकर क्यों ले जा रहे हो? ये बीमार है क्या? इनकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्या हुआ है इन्हें? देख भाई, यह मेरे उदर निर्वाह का सहारा है। ये सब बकरे मरने की अवस्था में जी रहे हैं, अतः इन्हें मैं कसाई खाने ले जा रहा हूँ। इन्हें वहाँ बेचकर अपना और अपने परिवार का उदर निर्वाह करूँगा। ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास उदर निर्वाह के लिए अन्न नहीं है क्या? राज्य से कोई सहायता नहीं मिलती तुम्हें? अरे भाई, कहाँ सहायता? हवन और बलि चढ़ाने के लिए पशु का इस तरह उपयोग होता रहेगा, तब तक बकरे जैसे पशु का हाल ऐसा ही रहेगा। धिक्कार है मेरे प्रजापति राम को। मेरे दूर विवेक से ही राज्य के लोग हिंसा में प्रवृत्त होते जा रहे हैं। मुझे अवश्य ही इस पर कुछ ठोस कदम उठाना होगा। जो झूठी प्रतिज्ञा करेगा उसे शिक्षा होगी, जो बस लंबट होगा उसे अधिक शिक्षा होगी, और जो जीव हिंसा करेगा उसे सबसे अधिक कठोर दंड मिलेगा। इस प्रकार की आज्ञा पत्रिका सारे राज्यों में भेज दो, और जिन नगर जनों को इस आज्ञा पत्रिका से नुकसान होगा उन्हें 3 साल का अन्न दिया जाएगा। ये भी फरमान कर दो। जो आज्ञा महाराज, आपकी आज्ञा का तुरंत ही पालन होगा। कर्तव्य पालक प्रजा वत्सल्य राजा कुमारपाल की जय हो, जय हो, जय हो। निश्चय से दृढ़ ऐसे महाराजा कुमारपाल गुप्त वेश में प्रतिदिन नगर का हालचाल देखते और जो भी समस्या अपने नगरजनों की होती थी उसका नगरजनों के हित में समाधान भी करते थे। एक बार उनके दृढ़ निश्चय को विचलित कर देने वाला प्रसन्न बनता है। महाराज की जय हो।
पाटन की अधिष्ठात्री देवी कंटकेश्वरी माता की नवरात्रि में पशु बलि द्वारा पूजा होनी चाहिए, नहीं तो देवी को पायमान होगी और उसके कोप से राजा और राज्यों पर भयानक आपत्ति आ जाएगी। मंत्रीश्वर जी महाराज। क्या ऐसा संभव है कि अगर पशु बलि न दी जाए तो देवी माँ क्रोधित होगी और राज्य पर आपत्ति आ जाएगी? आप इस राज्य की परंपरा से भली भांति परिचित हैं, इसके बारे में हमारा मार्गदर्शन करें। राजन, यह परंपरा कई सालों से चली आ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, हम परंपरा को तोड़कर देवी माता का अनादर नहीं कर सकते। पुजारी जी, आप इस नवरात्रि को परंपरा अनुसार मनाएं। माता को प्रसन्न करना ही हमारा धर्म है। क्षत्रिय होने के बावजूद भी मैं जैन धर्म का अनुरागी हूँ। यह जीव हिंसा नहीं होनी चाहिए। मैंने आज्ञा तो दे दी है, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या करूं? कैसे रोकूं इस जीव हिंसा को? मैं इन पशुओं की माता को बलि चढ़ाने के लिए लाया हूँ। इनको देवी माता के सामने जिंदा रखता हूँ। अगर माता को इनके मांस की आवश्यकता होगी तो वह स्वयं ही इन अबोल पशुओं का भोग ले लेगी। आपको भोग तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंत्रीश्वर, सभी पशुओं को मंदिर में बंद करके मंदिर को बाहर से ताला लगा दो। राजन, गुस्ताखी माफ करें, लेकिन ये कैसे संभव है? बिना भोग के माता की बलि कैसे पूर्ण होगी? ये मुझे उचित नहीं लग रहा है। अतः आप अपने आदेश पर पुनः विचार करें। बिना बलि के माता का भोग विधान कैसे पूरा होगा? पुजारी जी, आप यूं ही परेशान हो रहे हो। अगर माता को बलि चाहिए तो वे पूरी रात में सभी पशुओं का संहार कर अपनी बलि स्वीकार कर लेगी। आप निश्चित रहिए। मंत्रीश्वर, आदेश का अमल करें। देखा पुजारी जी, देवी माता को तनिक भी बलि की आवश्यकता नहीं है। उन्हें ऐसी भूख नहीं है। अगर भूख होती तो इन पशुओं का निश्चित रूप से भक्षण किया होता। इससे यह मालूम होता है कि यह सब आपकी ही साजिश थी, जिससे पशु बलि कर मांस का उपयोग करने का कृत्य आप कर रहे थे और नगर जनों को अंधश्रद्धा में डाल रहे थे। आज तक आपने जिस तरह से अबोल पशुओं का वध किया था, उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपको मृत्युदंड देते हैं। मंत्री जी, आज से अभी से इस प्रकार की किसी भी अंधश्रद्धा में कोई भी नगरजन किसी के बहकावे में न आए, ऐसा फरमान करे। और यदि कोई भी ऐसा अधम कार्य करता हुआ पाया गया तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। परमार्थ। कुमारपाल महाराज की ऐसी अहिंसक प्रवर्तक नीति की आमूल मूल परिवर्तन की उद्घोषणा करने से अन्य राज्य के राजाओं ने भी अपने राज्यों में अमल करना शुरू कर दिया है। ऐसे अहिंसा प्रेमी राजन को शत शत वंदन। वाह, क्या बात है। अपने राजा की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। हाँ अवश्य, यह तो 16 आने सच है। हमारे राजा की विशेषता और गुणों पर संदेह नहीं किया जा सकता। हमें ऐसे राजा पर गर्व हो रहा है। हमारे महाराज नीति प्रवर्तक, धर्मपालक, दयालु तथा प्रजावत्सल जैसे गुणों से शोभायमान है। ऐसे शासन सम्राट को पाकर हम धन्य हो गए हैं। हाँ हाँ, हम धन्य हो गए हैं।
शमकाळनी काळ रात्री मा जय जयकार मचावे वीर अनुशासन गाजे वीर अनुशासन गाजे अज महावीर अनुशासन गाजे वीर अनुशासन गाजे महावीर अनुशासन गाजे आरुषण काळनी काळ रात्री मा जय जयकार मचावे वीर अनुशासन गाजे महावीर अनुशासन गाजे गाजे रे गाजे गाजे रे गाजे गाजे रे गाजे पावनकारी तीर्थभूमियों जिन बिंबों ने जिनालयो पावनकारी तीर्थभूमियों जिन बिंबों ने जिनालयो सोहे जगमा पुण्य भूमियों सोहे जगमा पुण्य भूमियों जिनागमो बड़ी उपाशयो जिनागमो बड़ी उपाशयो काळनी काळ रात्री मा जय जयकार मचावे वीर अनुशासन गाजे महावीर अनुशासन गाजे गाजे रे गाजे गाजे रे गाजे गाजे रे गाजे गाजे रे गाजे शासननी रक्षा करता आचार्यो संग थोरी छे शासननी रक्षा करता आचार्यो संग थोरी छे माता प्रवचन प्रवचन उपाध्याय उपकारी छे काळनी काळ रात्री मा जय जयकार मचावे वीर अनुशासन गाजे महावीर अनुशासन गाजे गाजे रे गाजे गाजे रे गाजे गाजे रे गाजे गाजे रे गाजे ज्ञान ध्यान मा मस्त मुनियो मोहरणे टंकार करे ज्ञान ध्यान मा मस्त मुनियो मोहरणे टंकार करे कीर्ति संगी शासन रंगी कीर्ति संगी शासन रंगी जिन भक्तो जयकार करे जिन भक्तो जयकार करे काळनी काळ रात्री मा जय जयकार मचावे वीर अनुशासन गाजे महावीर अनुशासन गाजे गाजे रे 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 रात्री मा जय जयकार मचावे प्रसन्न हूं। महाराज ने पाटन राज्य की इतनी वृद्धि की है,
मुझे आनंद है कि वे धर्म प्रवर्तक, आज्ञाकारी और प्रजाहितकारी है। हमारे राज्य की कीर्ति पूरे गुर्जर देश में फैल रही है। धर्मलाभ, कुमारपाल, मैं आज अत्यधिक प्रसन्न हूं कि तुम सुशासन कर रहे हो। तुम्हारी कीर्ति चारों ओर फैल रही है और तुम्हारे गुणों की चर्चा दूर दूर तक सुनाई देती है। गुरुदेव मध्यम वंदना, यह सब आपकी कृपा से ही हो रहा है। भला मैं क्षत्रिय, शिव को मानने वाला, हिंसा को ही समझने वाला, कहाँ इस अहिंसा को समझ पाता। आपके उपदेश से ही मैं जैन धर्म का अनुरागी बना हूँ। मेरी इतनी प्रशंसा न करें गुरुदेव, मैं तो आपके चरणों का दास हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपकी ऐसी कृपा मुझ पर और मेरे राज्य पर सदैव बनी रहे। कुमारपाल, तुम्हारी कीर्ति को सुनते हुए मुझे लगता है कि अब तुम्हें तीर्थ स्नान, ज्ञान भंडार, गौशालाओं आदि के उत्थान के सुकृत्य भी करने चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी लाभान्वित होती रहे। जो आज्ञा गुरुदेव, आपकी प्रेरणा और मार्गदर्शन से आप जो निर्देश करेंगे उसे आज्ञा समझकर पूर्ण करूंगा। धर्मलाभ, धर्मलाभ, धर्मलाभ। आचार्य की आज्ञा अनुसार राजा कुमारपाल ने सैकड़ों जिनालयों का निर्माण, जीर्णोद्धार और हमारे प्रवर्तन के सैकड़ों शुभ कार्य किए। आचार्य हेमचंद्राचार्य जी के काल धर्म के 6 मास पश्चात राजा कुमारपाल पर उनके भ्राता महिपाल के पुत्र अजयपाल ने विष प्रयोग किया। कुमारपाल के प्रति द्वेषभाव रखते हुए राज सत्ता प्राप्त करने हेतु उन्हें विष देकर मृत्यु का अधम कृत्य किया। चाचा, आप मुझे अपने वंश का वारिस नहीं बनाना चाहते थे। अब देखिए, इस अग्नि पर से आपका नामो निशान मिटा दूंगा। आपने जितने भी जिनालयों, तीर्थ स्थानों का निर्माण करवाया है, उन सब का विध्वंस करूंगा। भाइयों, कुमारपाल ने जितने भी सुकृत किए हैं, तीर्थ का निर्माण करवाया है, उन सभी को नष्ट कर दो और मेरे आदेश को तुरंत अमल में लाओ। कोई भी ग्रंथ भंडार, ज्ञानशाला, जिनालय का कोई भी अवशेष दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। जाओ, सब कुछ नष्ट कर दो। यह तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। अब क्या होगा? यह तीर्थ अब हम कभी नहीं देख पाएंगे क्या? राजा अजयपाल को यह कैसी कुमति हुई कि यह दुष्कृत्य करने जा रहा है? अरे बातें मत करो, कुछ करने का समय है। हम सबको मिलकर अजयपाल को सबक सिखाना चाहिए। अरे चुप हो जाओ, राजा के गुप्तचर यहाँ वहाँ होते हैं, किसी ने सुन लिया तो तेरा तो जो होगा सो होगा, हमारे प्राणों पर भी संकट आ सकता है। तो क्या इस तरह डर के साथ जीते हुए प्राण त्याग दे? सुनो, अजयपाल ने अपने चाचा को विष देकर पाटन की राजसत्ता ली है। वह कितना दुष्ट है यह समझो। हम गरीब प्रजा उसके सामने तिनके के बराबर है। शासन के प्रति चतुराई हम नहीं दिखा सकते। शायद हमारा हाल भी राजा कुमारपाल जैसा हो सकता है। तुम सबकी बात तो ठीक है, पर इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? तुम में से कोई इस समस्या के बारे में सुझाव दे सकता है क्या? यह महान तीर्थ
कितने ही लोगों की आस्था का प्रतीक है। तीर्थंकर अजीतनाथ स्वामी, अब आप ही कुछ रास्ता दिखाइए। यह तीर्थ आने वाली पीढ़ी का भविष्य है। धर्म की ध्वजा को लहराते देख कितनी ही आत्माएं धर्म प्रेमी बनी है और आने वाले समय में धर्मानुरागी बनेंगे। हे परमात्मा, सहाय करो, सहाय करो, सहाय करो। आप सभी की चिंता जायज है। आप सभी का शासन प्रेम, धर्म के प्रति आपकी श्रद्धा और धर्म भावना मैं समझ रहा हूँ। यह समय हम यूं ही विचार विमर्श में व्यतीत न करके अपने नगर के शिष्यों से सलाह मशवरा कर तीर्थ की रक्षा कैसे की जाए उसका कोई उपाय ढूंढते हैं। तो चलो नगर शेख बाहर और रावण जी के पास। हाँ, यही उत्तम विचार है। चलो भाइयों। हाँ, चलो। दुष्ट राजा अजयपाल तारंगा तीर्थ का विध्वंस करने के लिए अपनी सेना को भेज रहा है और यह बात हमें पता है। इस पर हम बहुत चिंतित और ग्लानि का अनुभव कर रहे हैं। कुमारपाल राजा के प्रति द्वेष भाव रखते हुए अजयपाल ने उनकी मृत्यु के पश्चात कुमारपाल राजा ने जितने भी सुकृत्य किए हैं, जैसे कि ज्ञान मंदिर, तीर्थस्थान, जिनालय आदि का विध्वंस करने की प्रतिज्ञा ली है। अब उसकी नजर हमारे गुर्जर देश के सबसे बड़े शिखर तारंगा तीर्थ को नष्ट कर अपनी मनेच्छा पूर्ण करने हेतु अपने सैन्य को प्रस्थान करवा चुका है, जिसे रोकने का कोई उपाय हमें नहीं मिल रहा है। अगर कोई उपाय है तो भी राजा के सामने हम अपना प्रतिशोध कैसे व्यक्त करें? वाह 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 रामलाल, वाह रामलाल, तूने क्या किरदार निभाया है। हृदय में पूरी तरह से इस नाटिका का किरदार घर कर चुका है। तुम्हारा यह जन जागृति का प्रयास अति सराहनीय है। तुम्हें माँ सरस्वती का वरदान है। तुम्हारी बोली सुनने वाला तुरंत ही उसका मर्म समझ जाता है। बड़ी सरलता से तुम कठिन से कठिन बात को अपनी कला से समझा देते हो। मैं तुम्हारी इस कला की प्रशंसा करते हुए तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसी ही नाटिका के माध्यम से तुम समाज में नई सोच का प्रचार प्रसार करो। आभार, आभार रावण शेठ, आभार। आप मेरी इतनी प्रशंसा कर रहे हो, उसके लायक नहीं हूँ मैं। यह सब मेरी कुलदेवी और माँ सरस्वती का आशीर्वाद है कि मुझ में ऐसी शक्ति आती है जिससे जन जन में नई सोच, नयापन, नीति प्रवर्तन की राह दिखाने का प्रयास करता हूँ। धन्यवाद शेठ जी, धन्यवाद। काठियावाड़ में जिसे गंधक और शीलभांड कहा जाता है, अर्थात बहुरूपिया या नाट्यकार, जो गांव-गांव, गली-गली घूम-घूम कर अपने साथियों के साथ जनहित में सजागता लाने का प्रयास करता है।
अब क्या होगा अगर ऐसा हुआ? क्या होगा? क्या हुआ नगर से? ऐसे चिंतित और गंभीर क्यों लग रहे हो? सबकी मुख मुद्रा तंग क्यों है? कोई गंभीर बात है क्या? रामलाल, बात ही कुछ ऐसी है, सोच बुझ गई है। कहाँ से तुम्हें बताओ? बात ही कुछ ऐसी है, सोचते ही मन ग्लानि से और हृदय विषाद के भाव से भर जाता है। दिल की धड़कन रुक रुक कर चलने लगती है। एक आशंका है जो दिमाग में घूम रही है। अरे सेठ जी, आपकी जो भी समस्या हो मुझे निसंकोच बताइए। मुझे जितना बन पाएगा मैं अवश्य सहाय करूंगा। सुनो रामलाल, अपने शासक राजा अजयपाल ने महाराजा कुमारपाल से द्वेष भाव रखते हुए उनके द्वारा निर्मित सभी जिनालयों, ज्ञान भंडार और तीर्थ स्थानों को विध्वंस करने की प्रतिज्ञा ली है। पूरे राज्य में कई सारे तीर्थों का विध्वंस करके अब वह हमारे तारंगा तीर्थ को नष्ट करने के लिए अपने सैन्य को प्रस्थान करवा चुका है। न जाने उसकी सेना कब यहाँ तक आ जाए। तीर्थ का सर्वनाश, विध्वंस यानी धर्म का सर्वनाश, शासन का सर्वनाश। आने वाली पीढ़ी को हम विरासत में क्या देंगे? वे हमें कभी माफ नहीं करेंगे, वे हमें कभी माफ नहीं करेंगे। बात तो सही है। कैसे लोग हैं आप सब? यूं ही चिंता और विचार विमर्श में समय बर्बाद कर रहे हो। आप जानते हैं नगर के बाहर चौराहे पर हमारी कुल देवी का छोटा सा मंदिर है। अगर अजयपाल जैसे किसी की भी दृष्टि मंदिर पर पड़ी, हम उसे ऐसा सबक सिखाते कि उसकी आने वाली 7 पुश्तें जीवन भर याद करके ऐसा दुष्कृत्य करने का विचार भी अपने दिमाग में नहीं लाती। आप सब जैनियों अपनी वीरता दिखाइए और आने वाले संकट का बड़ी हिम्मत से सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। यह विचार विमर्श बंद कीजिए। सटीक निर्णय लेकर अजयपाल के सैन्य को मुंह की खिलाने का मंसूबा बनाइए। शांत रामलाल, शांत। यहाँ पर हमारी और तुम्हारी सोच के बीच अंतर हो रहा है। ध्यान से सुनो। राजा अजयपाल के सामने विद्रोह करना या उनका सामना करना हमारी सोच नहीं है। अगर हम युद्ध की तैयारी भी करें तो कितने सारे लोगों की मृत्यु होगी। अपने ही परिवार की बहू बेटी विधवा और अनाथ हो जाएगी और अपना यह तारंगा गांव नष्ट हो जाएगा। यह होने पर भी तीर्थ का अस्तित्व रहेगा कि नहीं, उसका कोई भरोसा नहीं। अतः ऐसा कुछ करे जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। यह बात है। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो मेरे पास एक तरकीब है। क्या तरकीब है? बताओ रामलाल, जल्दी बताओ। देखिए सेठ जी, मैं ठहरा बाल बच्चों वाला आदमी। यह युद्ध का माहौल है, कुछ भी होने की संभावना है और यह पापी अजयपाल बड़ा ही अहंकार और द्वेष भाव रखकर सभी को एक नजर से देख रहा है। ऐसी स्थिति में मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, चाहे वो मुझे फांसी दे या मेरा वध करे। पर क्या रामलाल? पर मेरे परिवार का क्या? अगर आप मेरे परिवार के भविष्य की जिम्मेदारी निभाने का वचन देते हो तो यह मुश्किल कार्य करने को मैं तैयार हूँ। और हाँ, यह कार्य बिना किसी रक्तपात, नरसंहार और किसी भी विनाश के बिना करूँगा। अरे भाई, पहले अपनी तरकीब तो बता, हम भी तो जाने तेरी चतुराई और मकसद को। यह सब छोड़िए सेठ जी, आप मुझे वचन दीजिए कि मेरे परिवार की जिम्मेदारी आप बखूबी निभाएंगे। ठीक है, हम वचन देते हैं, तुम निश्चिंत रहो और अपने मंसूबे को सफलता में परिवर्तित करने का पूरा प्रयास करो। तो सुनिए सेठ जी, बस सेठ जी, आप निश्चिंत होकर गांव का ध्यान रखो। मुझे अपने काम में सफलता मिले ऐसी शुभकामना दीजिए और दादा जितना से प्रार्थना करना कि मैं अपने तीर्थ की रक्षा के कार्य में फतेह होकर ही वापस आऊं। विजय भव रामलाल, विजय भव।
केसरिया 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 करेंगे हम केसरिया 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 करेंगे कर्म संग्राम में जाकर करेंगे हम केसरिया वीर के निपुण संतान करेंगे हम केसरिया 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 करेंगे कर्म संग्राम में जाकर करेंगे हम केसरिया वीर के निपुण संतान करेंगे हम केसरिया 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 करेंगे हम केसरिया 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 करेंगे चाहे हो हार चाहे हो जीत करेंगे प्रभु से प्रीत यही है प्यारी हमारी रीत अनुपम होगी जी करेंगे मरेंगे हम गुरु ने नहीं सिखाया करके ही रहेंगे हम ऐसा पाठ पढ़ाया होगा पूर्ण अवतरिया जल्दी गाएंगे केसरिया आत्मोद्धार का अवसरिया करेंगे हम केसरिया 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 करेंगे हम केसरिया 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 करेंगे अनंत भवों की थकान से मयूर जीवन अपनाएंगे वेग नहीं संवेग से चारित्र जीवन पाएंगे जैन सेना का ऐसा शरणागति उनकी प्यारी करेंगे कर्मों से बात नित्य हो जाए हमारी श्रुत में दिखी प्रवज्ञा करेंगे हम केसरिया जिनागम राह दिखाया करेंगे हम केसरिया 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 करेंगे हम केसरिया 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 करेंगे हम कर्म संग्राम में जाकर करेंगे हम केसरिया वीर के निपुण संतान करेंगे हम केसरिया 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 रामलाल अपने साथियों के साथ पाटन राज्यसभा के सभी प्रतिनिधियों को रामलाल बारोट का प्रणाम। पाटन नरेश प्रजावत्सल धर्मरक्षक कुमारपाल राजा के पूर्वज को प्रणाम। वर्तमान राजा अजयपाल के
पूर्वज को मेरा प्रणाम। मंत्रीश्वर, ये रामलाल बारोट कौन है? क्या करता है? राजन, ये शिल्पांड है। गांव-गांव, गली-गली घूमकर अपनी कला के माध्यम से जन जन में नई सोच का प्रचार प्रसार कर अच्छी सीख देते हुए नाटिका करता है। हमारे गुर्जर देश का रत्न है महाराज। अरे वाह, ऐसा रत्न हमारे राज्य में आकर हमारी शोभा में अभिवृद्धि कर रहा है। महाराजाधिराज, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। कला और संस्कृति की धरोहर ऐसी पाटन नगरी में आपने शायद मेरी कला की प्रशंसा सुनी होगी, पर महाराज, इस कला की नगरी को मैं हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा था। परंतु जाने से पहले आपको प्रणाम करने आया था। मुझे आप जाने की अनुमति दीजिए। मैं बड़े अफसोस और भारी हृदय के साथ जा रहा हूँ महाराज। अरे रामलाल, तुम हमारे राज्य का वह हीरा हो जिसे उंगली में पहना जाए। तुम यहाँ से क्यों जाना चाहते हो? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है क्या? मुझे बताओ। तुम्हें अवश्य न्याय मिलेगा और दोषित को दंड मिलेगा। राजन, हम कलाकारों को अपनी कला का मोल नहीं मिल रहा। आपके सभी नगरजन नीरस है। शायद उन्हें कला का महत्व ही नहीं पता। कृपया मुझे आग्रह ना करें। मुझे जाने की अनुमति दीजिए महाराज। अरे नट सम्राट, ऐसी नाराजगी आप अपने चेहरे पर क्यों ला रहे हो? हमें विस्तार से बताओ, तुम चाहते क्या हो? राजन, कृपया मुझे आग्रह न करें। मुझे जाने की अनुमति दीजिए। अब यहाँ से मेरा मन भर गया है। रामलाल, तुम निश्चिंत होकर मुझे बताओ। हम तुम्हें ऐसे मायूस होकर अपने राज्य से नहीं जाने देंगे। किसी कलाकार का ऐसा मायूस होना मुझ जैसे राजा की तौहीन होगी। तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? कुछ मूल्य या कुछ और चीजें जिनकी तुम्हें आवश्यकता है? तुम निस्संदेह बताओ। यह अजयपाल तुम्हें निराश नहीं करेगा। राजन, हम कलाकारों का मूल्य ही कला की प्रशंसा है। नगरजनों की हमारी नाटिका में उपस्थिति और वाह करना ही कदरदानी होता है। हमें मूल्य या कोई धनराशि का मोह नहीं है। हमारे उधर का यही आहार है महाराज। ठीक है, बताओ तुम क्या चाहते हो? राजन, हम चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति में और पूरे नगरजनों के सामने हम एक पारिवारिक नाटिका को प्रस्तुत करें, जिसे देख आप और सभी नगरजन अत्यंत प्रसन्न हो। यही हमारी कला के मूल्य के मिलने के बराबर होगा राजन। बस इतना ही है? तो सुनो रामलाल, हम तुम्हें यह वचन देते हैं कि तुम एक ऐसी नाटिका प्रस्तुत करो जिसे देख हम और हमारे सभी नगरजन अति प्रसन्न होकर तुम्हारे कला को सम्मान दे सके। हम स्वयं तुम्हारे इस नाटिका में सभी नगरजनों के साथ उपस्थित रहेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद राजन। आपने हमारी बात का स्वीकार किया, पर क्या रामलाल? पर एक छोटी सी समस्या है। क्या बात है? जल्दी बताओ। राजन, यह एक काल्पनिक नाटिका होगी। उसमें अलग अलग किरदार होंगे। शायद उसमें आपका नाम, नगरजनों के भी नाम आएंगे, और ऐसी घटना भी आएगी जिसे आपको शायद मुझ पे क्रोध आए, या फिर आप मुझसे नाराज होकर मुझे मृत्यु दंड दे दे। तो मेरे दयालु राजन, आप मुझे अभय वचन दीजिए कि नाटिका के दरमियान जो कुछ भी बातें आएगी आप उसे अनसुना करेंगे। बस इतनी सी बात? अरे रामलाल, यह एक पारिवारिक काल्पनिक नाटिका होगी, यह हम जानते हैं। तो सुनो रामलाल, हम तुम्हें अभय वचन देते हैं कि हम और हमारे राज दरबारी या नगरजन कोई भी तुम्हें जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नहीं 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 राजन, मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। जहाँ तक मैंने आपकी प्रशंसा सुनी है, आप अत्यंत कठोर, क्रोधी और दयाहीन हो। रामलाल, यह बात तुम्हें किसने बताई? बताओ उसका नाम। अभी उसको मृत्यु दंड दूंगा। देखा राजन, मैंने तो सिर्फ कानों सुनी बातों को आपके सामने प्रस्तुत किया। इतने में ही देखिए आप कितना क्रोधित हो गए और मृत्यु दंड की बातें करने लगे। अब आप ही सोचिए महाराज,
कि इस पारिवारिक नाटिका के दरमियान आने वाले काल्पनिक प्रसंग या संवाद में अगर आप क्रोधित हो गए तो मेरे पालनहार मेरा क्या होगा? इसलिए मुझे अभय वचन दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें अभय वचन देता हूँ। परंतु महाराज, ऐसे नहीं राजन। यहाँ सभी उपस्थित राज दरबारी आपके निकट और विश्वासु मंत्री जी को साक्षी में रखकर मुझे अभय वचन दीजिए। पाटन नरेश अजय पाल का तुम्हें यह अभय वचन है, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। महाराजा अजय पाल की जय हो। महाराजा अजय पाल की जय हो। महाराजा अजय पाल की जय हो। उचित समय, स्थल और दिन पर राजा अजयपाल अपने सभी नगरजनों और राज दरबारियों के साथ नाटिका देखने पटांगण में पहुंचते हैं। रामलाल उन्हें देखकर चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हुए अपनी तरकीब को अंजाम मिल रहा हो ऐसा सोचकर प्रसन्न हो रहा है। अब मैं वृद्ध हो रहा हूँ, मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, अतः मुझे अपने घर मंदिर की चिंता खाए जा रही है। मेरी मृत्यु के बाद इसकी देखभाल कौन करेगा? इस बात की मुझे बहुत चिंता है पुत्रों। पुत्र। जी पिताजी। तू मेरा बड़ा पुत्र है। मैं यह चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु के पश्चात अपने घर मंदिर की देखभाल तुम करो बेटा। पिताजी, ये मेरे बस की बात नहीं है। तू मेरा बड़ा बेटा है, तुझे ही संभालना चाहिए। पिताजी, मैं बड़ा हूँ, ये मेरा गुनाह है क्या? आपके 3 पुत्र और भी हैं, उन्हें ये जिम्मेदारी दीजिए, मुझसे ये नहीं होगा। बेटा, बेटा सुन तो मेरी बात। बेटा। जी पिताजी। बेटा, मैं यह चाहता हूँ कि अपने घर मंदिर को तू देखे, उसकी देखभाल की जिम्मेदारी तू ले ले बेटा। ना पिताजी, मुझसे ना होगा। संपत्ति का बंटवारा करना है तो बोलिए, अतः मुझे माफ करें। बेटा। जी पिताजी। तू मेरा बड़ा आदर करता है। जी पिताजी। और कुछ हद तक तुझे धर्म के प्रति श्रद्धा भी है। जी पिताजी। तो मेरी ऐसी इच्छा है कि अपने घर मंदिर की देखभाल तू करे बेटा, तू करे। पिताजी, मैंने मेरे दोनों बड़े भाई की बात सुनी है, मेरा उत्तर भी वही है, अतः मुझे क्षमा करें। मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले पाऊंगा। यह क्या बोल रहा है बेटा? यह मंदिर हमारे धर्म के प्रति श्रद्धा का प्रतीक, उसे संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है, यह ठीक नहीं है। पिताजी, आप जो समझे, मुझे क्षमा करें। यह कैसी विपदा है कि मेरे पुत्र को इस मंदिर की देखभाल करने में जरा से भी रुचि नहीं है। मेरे बाद इस घर में धर्म का पंथ कैसे चलेगा? मेरा छोटू
सबसे ज्यादा आदर देता है और मुझसे अधिक प्यार करता है। वह कभी मेरी बात का उल्लंघन नहीं करता। हाँ, वो ही संभालेगा। छोटू, बेटा छोटू, इधर आना। जी पिताजी। बोलो पिताजी। मेरे प्यारे पुत्र, तू मेरा बड़ा आदर करता है। मैं तुझे आज्ञा करता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद अपने घर मंदिर की देखभाल तू करे बेटा, तू करे। पिताजी, मैं सभी भाइयों ने इस जिम्मेदारी का अस्वीकार किया है, अतः मैं छोटा हूँ इसलिए आप मुझ पर यह जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। ऐसा मत बोल बेटा, तू मेरा लाडला बेटा है, तू धर्म को समझता है, अतः तू ही मंदिर की देखभाल सही तरीके से कर सकता है। पिताजी, आप यही सोच रहे हैं ना कि आपके बाद इस मंदिर का क्या होगा? हाँ बेटा। तो मैं अभी ही उसका उपाय किए देता हूँ। मुझे पता था छोटू मुझे कभी निराश नहीं करेगा। पिताजी, आपकी चिंता का उपाय अभी आपके सामने ही करता हूँ। अभी मैं इस मंदिर का विध्वंस कर देता हूँ, जिससे आपको संदेह न रहे कि आपकी मृत्यु के बाद इस मंदिर का क्या होगा। रुक जा, रुक जा, रुक जा मेरे कुपुत्रा, मेरे जीते जी, इस मंदिर को हाथ मत लगाना। बूढ़ा जरूर हूँ, लेकिन मुझ में अभी भी वीर रस दौड़ रहा है। तू भी मेरा कुपुत्रा ही हुआ। कुत्ते जैसा जीवन जीने वाला अजयपाल और कुत्ते से भी बदतर मौत पाने वाला अजयपाल, उससे भी तू तो गया गुजरा निकला। उसने तो अपने पूर्वजों से निर्मित तीर्थ स्थानों की उनके मृत्यु के बाद विध्वंस करने का विचार किया है। तू तो उससे भी नालायक निकला कि मेरे जीते जी मेरे मंदिर को नष्ट करने चला है। सबूर, खबरदार, काट डालो उसकी गर्दन। महाराज सुनिए। आदेश का पालन किया जाए। महाराज आपका वचन। क्या वचन? कैसा वचन? महाराज आपने दिया हुआ वचन। कौन सा वचन? कैसा वचन मंत्री? राजन सुनिए, शांत रहिए। क्या सुनूं? उसकी यह बात सुनो। क्या बोल रहा है ये? यह मेरा अपमान कर रहा है और तुम मुझे शांत रहने की बात कर रहे हो। राजन क्रोधित ना हो, जल्दबाजी मत कीजिए, मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनो। आपने रामलाल को अभय वचन दिया है कि नाटिका में कुछ भी ऐसा संवाद या दृश्य आएगा आप उसे कुछ भी नहीं करेंगे। तो क्या करें? कुछ नहीं महाराज, सिर्फ देखते रहिए, कुछ ना करें, शांत रहिए। खेद है महाराज। महाराज, इस नाटिका में आपने जो कुछ भी देखा अच्छी बात है। जरा सोचिए, मेरे जीते जी अपने घर मंदिर का विध्वंस होने के प्रयास मात्र से मैं रोने लगता हूँ, तो जिसने इस देश में तीर्थों का, जिनालयों का निर्माण करवाया था, उसकी आत्मा को कितना दुख होता होगा। हमारे धर्म की धरोहर ऐसे हमारे तीर्थ, हमारी पहचान हमारे तीर्थ, हमारा अभिमान हमारे तीर्थ, हमारी शान हमारे तीर्थ, हमारे कर्मक्षय का क्षेत्र ऐसे हमारे तीर्थ को नष्ट करके अब साबित क्या करना चाहते थे? इतिहास को अब क्या जवाब देंगे? तीर्थों को नष्ट करके इतिहास के पन्नों पर अपना नाम स्वर्णाक्षरों से अंकित करना, क्या यही आपकी चाहना है? आने वाली पीढ़ी को क्या आप ऐसी विरासत देना चाहते हो जहाँ तीर्थ की जगह रेत और टूटे फूटे पत्थर हो? बोले राजन, बोलिए, क्या यही आपकी मनच्छा है? किस द्वेष भाव से आप इस विध्वंसता के नायक बनने जा रहे हो? आप तो जैन धर्म के अरिहंत परमात्मा के अनुयायी है, जिसमें न राग है, न द्वेष है, न अहंकार है, सिर्फ सरलता, समता और त्याग की भावना है।
हिंसा का स्थान तो दूर दूर तक नहीं है। बोलिए राजन, बोलिए, क्या आप अभी तीर्थों को नष्ट करना चाहेंगे? बोलिए राजन, बोलिए। रामलाल, यह नाटिका नहीं, एक युद्ध था। ऐसा युद्ध जिसमें कोई शस्त्र न थे, केवल शब्द ही शस्त्र बन गए। यह शाब्दिक युद्ध था जिसमें अजय पाल की पराजय हुई। तुम जीते रामलाल, तुम जीते। अजय पाल शस्त्र के युद्ध में जीत सकता है, किंतु शब्द युद्ध में मैं रामलाल पराजित हुआ। तुमने पराजित कर मेरी आंखें खोल दी। मुझे मेरे दुष्कृत्य का ज्ञान हो गया है। आज तक मैंने मेरे पूर्वजों की धरोहर को द्वेष भाव रखते हुए नष्ट किया है। रामलाल, आज यह अजय पाल वचन देता है, तारंगा तीर्थ नष्ट नहीं होगा। महाराजा अजय पाल की जय हो! महाराजा अजय पाल की जय हो! महाराजा अजय पाल की जय हो! महाराज, गुस्ताखी माफ हो। आपको समझाने के लिए ही हमने इस पारिवारिक नाटिका को प्रस्तुत किया है, जिससे आपको अपने पूर्वजों के प्रति आदर भाव हो और तीर्थों की विध्वंसता आप स्वयं रोक सके। यही हमारी चाहना थी। आपके इस वचन को सुन के हम सब बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए महाराज। तारंगा तीर्थ आज अपनी जगह बिना जीर्ण हुआ खड़ा है। मिच्छामी दुक्कड़म मांगते हैं। जय जिनेंद्र।
कथाकार એટલે ગુરુમાં પ્રખર નિડર અને સ્પષ્ટ વક્તા એટલે ગુરુમાં કોઈનું દુઃખ જોઈને ભરી સભામાં રડી પડતા એવા કરુણામૈયા એટલે ગુરુમાં 20,000 શ્લોક પ્રમાણ શાસ્ત્રના જટિલ પદાર્થોનું નવસર્જન એટલે ગુરુમાં પોતાના સંયમ જીવનની ચુસ્તતા એટલે ગુરુમાં શાસનના કાર્યોની શૃંખલા એટલે ગુરુમાં પોતાના નામ આગળ કોઈ વિશેષણ ન લગાવવા દેતા એ આપની નિષ્ઠુરતા એટલે ગુરુમાં સૌથી વધુ શિષ્ય પ્રશ્ન ગુરુ તથા અનેક શ્રવણ શ્રમણી ભગવંતોના સંયમ પ્રહાવર એટલે ગુરુમાં એક ગુરુ આદર્શ ગુરુ સમર્પિત ગુરુ આજ્ઞાકિત શિષ્ય એટલે ગુરુમાં અનેક આચાર્ય ભગવંતના સલાહ સૂચનનું એક પવિત્ર સરનામું એટલે ગુરુમાં એવા તો કેટલાક ગુણોને યાદ કરીએ ગુરુદેવ પ્રભુ મિલનમાં ભાવ વિભોર બની જતા તે આપની પ્રભુમયતા પોતાના નામ આગળ કોઈ વિશેષણ ન લગાવવા દેતા એ આપની નિષ્ઠુરતા લાખો યુવાનો પર વરસતી આપની વાત્સલ્યતા 56,000 કતલખાનાઓ બંધ કરાવી એ આપની કરુણા અને મારા જેવા અનેક શૂદ્ર જીવોને પણ આપણા વિશાળ હૃદયમાં સમાવી લેતા એવા અક્ષય પદના માર્ગદાતા વાત્સલ્ય વારિધી ગુરુમાતા એવા પ્રેમ સુહંકર ભાનુ વજ્રંકર જય ઘોષ જયંકર કન્યાસ પુરંકર યુગપદાન આચાર્ય સમ પરમ પૂજ્ય કન્યાસ પ્રવાસી ચંદ્રશેખર વિજયજી મહારાજાનો જય હો વિજય હો એટલે ગુરુમાં તપોના હરેક બાળકની અંદર જે જોમ દેખાઈ રહ્યું છે એટલે ગુરુમાં તપોના દરેક બાળકની અંદર જે પગમાં થલગનાટ દેખાય એટલે ગુરુમાં કોઈ રામલાલ ને કોઈ અજયપાલ કોઈ સંયમી અને કોઈ રમત ગમતના ક્ષેત્રે દરેક ક્ષેત્રની અંદર દરેક બાળકનું ટેલેન્ટ એટલે ગુરુમાં ક્યાં નથી ગુરુમાને શોધવા હોય તો માત્ર એકવાર તપોનમાં જજો એક બાળક ઊભો થશે અને ગુરુમાં તમને દેખાઈ જશે એટલે ગુરુમાં कितना जबरदस्त एक भाव गुजराती में एक लाइन कही थी फरी बाद में हिंदी में बोलूंगा देखते देखते आंखना खूणे आंसुना तोरण बंधाय बहु हृदयथी कहीश प्राणपुरिया छे नाटकनी अंदर एक बार भक्ताना हाथ ऊंचा थई जाए प्रोफेशनली तैयारी प्रोफेशनली म्यूजिक प्रोफेशनली डायरेक्शंस मैं जितने भी प्रोग्राम करता हूँ कोई बंदा छोटा सा बच्चा खड़ा होता ये भव्य था ये पुरस्कार थे ये लोग सामने बैठे थे लेकिन एक का नाम गाया मैंने उनको उठा लिया अगर यहाँ पे कोई निर्देशक या डायरेक्टर हो अगर इन बंदे को रामलाल को अजयपाल को जितने भी पात्र थे अगर एक बार वो देख ले तो मैं कह सकता हूँ वो निर्देशक इनमें से सबको उठा के एक बार एक फिल्म बना सकता ये क्या जबरदस्त भाव आज इन बच्चों ने तीर्थ की बात कर ली है बहुत दिल से मैं फिर से एक बार कहूँगा अगर मैंने में गाने की शक्ति है तो मैं रोज भगवान को प्रार्थना करूँगा कि परमात्मा मैं मेरे गीत से तीर्थ रक्षा की बातें करूँगा अगर आप में जो भी टैलेंट किसी के पास धन है तो धन से रक्षा कीजिएगा किसी के पास मन है तो मन से रक्षा कीजिएगा और किसी के पास तन की शक्ति है तो तीर्थ की रक्षा के लिए विकास के लिए अपना तन मन धन लगा दीजिएगा क्योंकि ये धरोहर फिर से नहीं मिलेगी बहुत कुछ था हमारे पास बहुत कुछ चला गया जो बचा है प्लीज सेव बचाइए इसको एक बार बहुत दिन से आज सुबह से आए हो आपसे बहुत सुंदर सवारे जोया तो लागतू नतु क्या वो थशे बापूजी कमाल आज तमाम तपोवनीओं ने वंदना करिए वो गुरुमा को याद करके आज जो गुरु भगवान इनके तपोवन के अंदर जो अपना भाव वहाँ पर सभी बच्चों में बांट रहे हैं उस तमाम गुरु मैया को वंदना करते हुए और वहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता से लगाकर अपने जैसे कि बाबूजी से लगाकर जो भी है एक बार सबके लिए ताली बजाइए छोटी सी बात कहते बापूजी को बोला क्योंकि आज ये सारे बच्चे बाहर से घर लीजिएगा
अपने अपने घर से थे। उनके माँ बाप ने सोचा कि मेरा बेटा तपोवन में जाए। शायद इनमें से जितने हैं इनमें से 80% बच्चे की इच्छा नहीं था कि मैं तपोवन में जाऊं, क्योंकि मेरे बेटे का भी यह हाल था। मेरे बेटे को जब मैं अमियापुर रखने के गया 5वीं कक्षा में, मैं जब छोड़ के आया गेट तक पीछे दौड़ के मेरे पैर पकड़े, मैं नहीं रहूंगा। मैं घर पे पहुंच गया तो वहां से फोन आया बापूजी का कि ये बहुत रो रहा है, नहीं रहेगा। कि 1 महीने में इतना बीमार हो गया कि वहां से कहा गया कि अल्पेश बापूजी बोले कि नीलेश भाई ले जाओ, नहीं रेशे। मैंने जबरदस्ती समझ करके और समझा करके उसको कहा तुझे रहना ही पड़ेगा। बताओ मैं आपको 6 साल में उस बेटे ने वो गुरु माँ की ऐसी कृपा ली है कि आज भारत में नहीं देश विदेश में तपोवन का नाम वहां जाके प्रसार कर रहा है। इन सभी बच्चों में टैलेंट है। बस मैं चाहूंगा कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं 6 साल नहीं तो 3 साल, 3 साल नहीं तो 2 साल, अरे आपकी सेफ्टी के लिए, आपको भविष्य में वो अपने माँ बाप की तरफ, भगवान की तरफ पूजा करे। अगर वो चाहते हो तो 2 साल भी आप अपने बेटे को तपोवन भेजिए, ताकि अपने भारत देश की, अपने जैन धर्म की, अपने तीर्थ की, अपने आत्मा की, अपने धर्म की रक्षा हो। बस यही अपील है मेरी। जी हाँ, मैं चाहूंगा बापूजी प्लीज वेलकम। आज पूरे दिन में जो सुबह से लगाकर जो कार्यक्रम रहा है, प्रेमदासी की बधाई, क्या शुभ भाव थे। बुआ भरोसा अशोक भाई के परिवार ने कमाल कर दिया। और आगे जाके पंडित जी को इंद्र महाराज ने रोका कि पढ़ाया नहीं जाता। उसके बाद सतत ये भाव 6-7 दिन का ये महोत्सव, अंजनी का प्रतिष्ठा महोत्सव, और इस शुभ भाव में हम चल रहे हैं। कल का कार्यक्रम एक यहाँ से मैं बोल दूंगा, कल सुबह इस नाट्य के कला गुरु, निर्देशक और दिग्दर्शक श्री सुनील भाई शाह और जिगर भाई शाह को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो स्टेज पे आवे। एक बार जोरदार ताली इन कला गुरुओं के लिए। इस नाटिका को 4 चांद लगे वैसा नृत्य कराने वाले श्री मितेश सर और साहिल सर का भी हम बहुत बहुत अभिवादन करते हैं। प्लीज वेलकम सर। बच्चे आओ सर, बच्चे आओ। आवेश भाई बच्चे आओ। ललित भाई 28 तारीख ये अभी चली गई तारीख, वो दिन अहमदाबाद में तपोवन का वार्षिक महोत्सव था। और वही दिन यही नाटिका, यही बच्चों ने सब बच्चों के पेरेंट्स और तपोवन के डोनर्स सभी को बुला के, आमंत्रितों को बुला के यही नाटिका उसने प्रस्तुत की। और आज वो यहाँ 1 तारीख आके अंतरिक्ष में ये बच्चों ने यही नाटिका, 2000 ताली। क्या बच्चे की क्या खुमारी है, क्या बच्चों ने, ये नीलेश पेरे तो बोला कि बिल्कुल प्रोफेशनल। 40 वर्ष से नवसारी तपोवन और अहमदाबाद तपोवन दोनों को मैं ये वार्षिक कार्यक्रम देख रहा हूँ। आज मुझे ऐसा लगा कि बहुत बहुत प्रसन्न। अंतरिक्षी तीर्थ में तीर्थ रक्षा के लिए तारंगा ऊपर जो नाटिका कुमारपाल महाराजा और अजय पाल की जो बनाई और ये प्रस्तुत की, सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत मेरी ओर से धन्यवाद देता हूँ। बापू जी, पारस भाई मेरे बड़े भाई हैं, एक स्टैंडर्ड को बच्चे को संभालने के लिए ऐसे बड़े भाई और मासीबा सभी तपोवन में सेवा दे रहे हैं। इसमें पारस भाई सभी बच्चों को लेके आ रहे हैं। एक छोटी सी बात आपके पास रजू करता हूँ। क्यों? आज अंतरिक्ष तीर्थ का अभ्युदय है और उस पर नाम लिखा गया है। क्या है मालूम है आपको? शेठ श्री
कांतिलाल लल्लू भाई झवेरी परिवार। ये तीर्थ का अभ्युदय ये परिवार ने किया। ये परिवार की बातें बहुत है, मैं आज अभी नहीं प्रस्तुत करूंगा, उनका समय आएगा तब करूंगा। लेकिन आज जब तपोवन की बात हो रही है तो जरूर करूंगा। ये 40 वर्ष पहले की बात है। गुरुदेव के पास अभी मेरे पास बैठे हैं मेरे वडील रमेश भाई, ये परिवार के मोभी है। वो आज मेरे पास ये वडील बैठे हैं, उनके बड़े भाई थे नरेश भाई, गुरुदेव के पास आए। गुरुदेव के पास बात हुआ, ये तपोवन गुरुदेव और मैं हाजिर था। गुरुदेव ने बहुत बढ़िया बात सुनाई कि ऐसा तपोवन हो रहा है, ऐसा तपोवन बन रहा है, आप उसमें लाभ लो। मेरा मालूम है 40 वर्ष पहले की बात, 31 लाख रुपया गुरुदेव ने उनको बताया। 1 मिनट में नरेश भाई ने आज ये नवसारी तपोवन पर श्री कांतिलाल लल्लू भाई झवेरी परिवार तपोवन संस्कार धाम, ऐसा नाम आज नवसारी में 40 वर्ष में। जगह के लिए हम बहुत ढूंढे, बहुत बढ़िया जगह लेनी थी, हाईवे टच जगह लेनी थी, बहुत प्रयत्न किया, लेकिन पैसे नहीं थे। कहाँ से लाना? तो एक नायरोबी का मुस्लिम अफ्रीका में रहता है और उसने जाम खंबालिया में ये तपोवन नहीं लेकिन युवानों का प्रोग्राम देख के उसने 11 लाख रुपया 42, 43, 44 वर्ष पहले डिक्लेयर किए, उसमें से जमीन लिया और ये तपोवन शेर श्री कांतिलाल लल्लू भाई झवेरी नाम का क्या वास स्थापन हो गया। आज उसमें से कितने बच्चे निकले। फिर बाद 10 वर्ष के बाद शेर श्री महेंद्र भाई तकमलाल अहमदाबाद में तपोवन हुआ। आज हजारों बालक अमेरिका, लंदन, अफ्रीका, एंटवर्प, ऑस्ट्रेलिया, कहीं कहीं जगह सारे विश्व में पर्यूषण पर्व की आराधना करने के लिए जाते हैं, स्पीच देते हैं, एंकरिंग करते हैं, प्रतिक्रमण कराते हैं, अच्छी तरह से भक्ति कराते हैं और अलग अलग शासन के कार्यक्रमों क्विज लेके वहीं के बच्चे को वो उठाते हैं और धर्म में जोड़ित करते हैं। ये तपोवन के बच्चे हैं। मैं आज रमेश भाई और उनके परिवार के सदस्य बैठे हैं, मैं आपको नतमस्तक प्रणाम करता हूँ कि आपने दिया 31 लाख रुपया, उसमें से आज तपोवन द्वारा हजारों बालकों संस्कार लेके आज घूम रहे हैं और ये तीर्थ रक्षा की नाटिका के द्वारा अपने हृदय में, अपने खून में, अपने बुद्ध पर कुमारी कैसे प्रकट करनी ये बच्चे बता रहे हैं। भक्ति, मैत्री और शुद्धि का एक मंत्र बच्चों ने दिया, उस बात से मिलती है कुमारी। ये कुमारी सुबह में 1 घंटे की बच्चों की परमात्मा भक्ति अष्टप्रकारी पूजा देखो, रविवार के दिन जाओ 3 घंटा अष्टप्रकारी पूजा देखो, शाम को आरती देखो, कमाल करेंगे। क्या बच्चे अपने परमात्मा के पास ऐसा लगाव कर दिया है। इस बच्चे को ये जो मिला वो ये परिवार ने दिया। तो ये परिवार आज अंतरिक्ष तीर्थ में भी देख सकते हो कि आज वो देखे सुबह में तो राजा बने, रानी बने, परिवार के सब सदस्य। और ये तीर्थ के अभ्युदय के लिए गुरुदेव ने 40 वर्ष पहला प्रयत्न किया। आज आप देख सकते हैं कि ये तीर्थ का अभ्युदय कैसे हुआ है। बस मेरे ये परिवार आज मेरे सामने बैठे हैं और बड़े बच्चे ने सब कार्य मेरे पास से तो ये हजारों बच्चों, क्योंकि 42 वर्ष से दोनों तपोवन की जगह हमने खरीद किया। हमने ना, हमारे ट्रस्टी लोग ने पैसा भी हमने लाया। अफ्रीका गए, लंदन गए, अमेरिका गए, घूमते रहे, इंडिया में गए, सभी के पास जाके तपोवन के लिए प्रस्तुत किया और लोगों ने पैसा बहुत दिल से देके आज ये दोनों तपोवन करोड़ों रुपया की संपत्ति आज हो गई। ऐसा दोनों
बहुत बहुत भव्य तपोवन दोनों बन गए हैं। अरे छोड़ो, अभी की बात करूं, 2 महीने पहले अहमदाबाद में 1000 लड़कियों के लिए कन्या तपोवन खड़ा हो रहा है और एक पार्टी ने टोटल 32 करोड़ रुपया देके यह कन्या तपोवन बनाने के लिए उसने अपनी संपत्ति न्यौछावर कर दी। गुरुदेव ने हमको दिया है, शासन के लिए दिया है, और ऐसा कन्या तपोवन 50 CR का प्लान अहमदाबाद में तैयार हो गया और अगली नई साल में यह कन्या तपोवन भी अहमदाबाद में बनेगा। बस मैं ये परिवार को 10 मिनट मैंने इसे लिया कि हमारे तपोवन के पाए की ईंट ये परिवार है और अंतरिक्ष का अभ्युदय का पाया की ईंट नीलेश भाई ये परिवार है। इसीलिए आज मैं उनकी बहुत बहुत सराहना, बहुत अनुमोदना करता हूँ कि ऐसा आपकी संपत्ति से हमको ये बल प्राप्त हुआ, ऐसा अभ्युदय पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से। आप आओ अहमदाबाद तपोवन देखो, आप नवसारी तपोवन देखो, क्या कमाल है। बिल्डिंगों की बात छोड़ो, लेकिन संस्कार, उनकी पवित्र ऊर्जा गुरुदेव की कैसे निकलती है वो तपोवन में आके देखो। बस सभी को आपको प्रणाम है। मैंने ये विदर्भ में सभी को ऐलान 2 दिन पहले दिया था कि जास्ती में जास्ती संख्या बढ़ाओ और ये बच्चे को निकलो। देखो तो सही, कल सुबह में 5 बजे अहमदाबाद से निकले, 4 साढ़े 3 बजे उठे होंगे, 5 बजे बस में स्टार्ट हुए और आज सुबह में वो 5 बजे अंतरिक्ष आए। कितना घंटा हुआ? 24। आज रात को अभी 11 बजे बस में बैठेंगे, कल रात को 11 बजे अहमदाबाद पहुंचेंगे। ये बच्चे भगवान के शासन के लिए, तीर्थ के लिए, गुरुदेव के लिए अपने को जो मिली है खुमारी और अपना जीवन परमात्मा के शासन में समर्पित हुए ऐसा कार्य कर रहे हैं। मैं बच्चों को भी बहुत बहुत आपकी सराहना, बहुत बहुत आपकी अनुमोदना और बहुत बहुत आगे बढ़ो ऐसा मैं आपकी शुभेच्छा। जय गुरुदेव। मेरे साथ राजू भाई भी मेरे साथ है, 50 वर्ष से दोनों हम काम कर रहे हैं। दोनों कोई भी जगह जाना हो तो मैं और राजू भाई साथ में दौड़ते हैं और साथ पे काम करते हैं। पैसा इकट्ठा करना, नई जमीन लेनी हो, बड़ी लोग को मिलना हो, आमंत्रण देना हो, सभी में मैं और राजू भाई दोनों 50 वर्ष से ये शासन के लिए काम कर रहे हैं। हमको कुछ नहीं कहता है, हमें एक जब्बा मिला और लेगा मिला, पैर में चंपल की जरूरत नहीं है, किसी के पास कोई भी नहीं। अमेरिका जाओ, लंदन जाओ, कोई भी जाओ, सोना की चैन देवे नहीं तो भी नहीं लेने का, ठुकरा देने का। अरे अफ्रीका में मुंबई सभी गए, एक भाई ने 15 तोला सोना लाके हमारी बैग में रख दिया, हमें छोड़ दिया, ये सोना मोना नहीं चाहिए, आप ले लो। यही भाई ने फिर तपोवन में आके 5 लाख रुपया का डोनेशन 40 वर्ष, बहुत अच्छी बात। लेकिन ये काम गुरुदेव की प्रेरणा से हो रहा है, ये काम गुरुदेव की प्रेरणा से हो रहा है। धन्यवाद बापूजी, राजूभाई। અત્યારે શાસનની તારીખનો ભાવના છે। कृष्णा नंदनवीर की जय, बोलो महावीर की। गली गली से यही पुकार, जय हिंद का जय जयकार, गली गली से यही पुकार, जय हिंद का जय जयकार। कृष्णा नंदनवीर की जय, बोलो महावीर की। कृष्णा नंदनवीर की जय, बोलो महावीर की। बोलो जिन शासन देव की जय, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की जय। सरस, वाह, ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ આભાર। કેટલા બધા સુકૃતોના ધણી અને સીમાંત સચિવ કાંતિલાલભાઈ લલ્લુભાઈ ઝવેરી પરિવાર, ખૂબ ધન્યવાદ। સરસ મજાનો, વાહ। गुरुकुलाध्यक्ष शासना प्रणामे 2 3 4 शासना स्थिति
दो। जिन शासन ने वंदन करता आनंद अति उभराए, एनी रक्षा करवा का जे जीवन अर्पण करिए, एनी रक्षा करवा का जे जीवन अर्पण करिए। वीर बाळ को, 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 वीर बाळ को। हो स्वनु जीवन प्रथम आपणे शुद्धि युक्त करशु, स्वनु जीवन प्रथम आपणे शुद्धि युक्त करशु, शुद्धि युक्त करशु, शुद्धि युक्त करशु। પછી મૈત્રને ભક્તિને દાવે વિશ્વ માત્રમાં ફરશું, પછી મૈત્રને ભક્તિને દાવે વિશ્વ માત્રમાં ફરશું, વિશ્વ માત્રમાં ફરશું, વિશ્વ માત્રમાં ફરશું। જીન શાસનની દિવ્ય ધજાને ગગને લહેરાવીએ, જીન શાસનની દિવ્ય ધજાને ગગને લહેરાવીએ। ઓ એની રક્ષા કરવા કાજે જીવન અર્પણ કરીએ, એની રક્ષા કરવા કાજે જીવન અર્પણ કરીએ। વીર બાળકો, વીર બાળકો, વીર બાળકો, વીર બાળકો, વીર બાળકો, વીર બાળકો। હો સાચા છે વિતરાગ ને સાચી છે જેની વાણી, સાચા છે વિતરાગ ને સાચી છે એની વાણી, સાચી છે જેની વાણી, સાચી છે જેની વાણી। આધાર છે પ્રભુ આજ્ઞાને બાકી ધૂળ ધાણી, આધાર છે પ્રભુ આજ્ઞાને બાકી ધૂળ ધાણી, ઓ બાકી ધૂળ ધાણી, ઓ બાકી ધૂળ ધાણી। એ જીવન મંત્ર છે આપણો ચાલો મંત્રિત થઈએ, એ જીવન મંત્ર છે આપણો ચાલો મંત્રિત થઈએ। ઓ એની રક્ષા કરવા કાજે જીવન અર્પણ કરીએ, એની રક્ષા કરવા કાજે જીવન અર્પણ કરીએ। વીર બાળકો, વીર બાળકો, વીર બાળકો, વીર બાળકો, વીર બાળકો, વીર બાળકો। હો આપણી સામે આદર્શો છે કેવા ભવ્ય ચમકતા, આપણી સામે આદર્શો છે કેવા ભવ્ય ચમકતા, કેવા ભવ્ય ચમકતા, કેવા ભવ્ય ચમકતા। કાલક કલ્પક કુણાર્ક પડતી કુમાર પાળ મને ગમતા, કાલક કલ્પક કુણાર્ક પડતી કુમાર પાળ મને ગમતા, ઓ કુમાર પાળ મને ગમતા, ઓ કુમાર પાળ મને ગમતા। એ ઇતિહાસોનું નવસર્જન કરવા તત્પર બનીએ, એ ઇતિહાસોનું નવસર્જન કરવા તત્પર બનીએ। ઓ એની રક્ષા કરવા કાજે જીવન અર્પણ કરીએ, એની રક્ષા કરવા કાજે જીવન અર્પણ કરીએ। વીર બાળકો, વીર બાળકો, વીર બાળકો, વીર બાળકો, વીર બાળકો, વીર બાળકો। હો નથી જોવાતી નથી સેવાતી હિલના તુજ શાસનની, નથી જોવાતી નથી સેવાતી હિલના તુજ શાસનની, હો હિલના તુજ શાસનની, હો હિલના તુજ શાસનની। માં તુજ ખાતર ફન થઈ જાસુ નથી પરવા જીવનની, માં તુજ ખાતર ફન થઈ જાસુ નથી પરવા જીવનની, ઓ નથી પરવા જીવનની, ઓ નથી પરવા જીવનની। આશીષ દે માં જંગ જીતવા કેસરિયા સૌ કરીએ, આશીષ દે માં જંગ જીતવા કેસરિયા સૌ કરીએ, ઓ કેસરિયા સૌ કરીએ, કેસરિયા સૌ કરીએ, કેસરિયા સૌ કરીએ। એની રક્ષા કરવા કાજે જીવન અર્પણ કરીએ, એની રક્ષા કરવા કાજે જીવન અર્પણ કરીએ। વીર બાળકો, વીર બાળકો, વીર બાળકો, વીર બાળકો, વીર બાળકો, વીર બાળકો। जिस शासन ने वंदन करता आनंद अति उभराए, जिस शासन ने वंदन करता आनंद अति उभराए। एनी रक्षा करवा काजे जीवन अर्पण करिए, एनी रक्षा करवा काजे जीवन अर्पण करिए। हो वीर बाळको, 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 वीर
जिस बच्चे तो हमें चाहिए वीर बाड़ को, हमें चाहिए